So, Harsh Patel ji, I'm very excited to ask you so many sentences. Are you excited to translate them? Yes, I'm excited. Wow. The first sentence that I would like to ask you is, मैं आपको वहां जाने नहीं दे सकता. In English. I can't let you go there. I can't let you go there. मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है. I will let you speak, but I have a condition. I have a condition. क्या आप मुझे बोलने देते हो? Do you let me speak? मैं आपको बोलने नहीं देता. I don't let you speak. I don't let you speak. I don't let you speak. मुझे सोचने दो क्या करना है. Let me think what to do. Let me think what to do. उससे इंग्लिश बुलवाओ. उसको कुछ नहीं आता है. Let him speak English. Let him speak उससे English. कुछ नहीं आता है. He doesn't know Make anything. him. उससे इंग्लिश बुलवाओ. Make him speak English. He does not Yes. Make him speak know English. anything. उससे कुछ नहीं आता. He doesn't know anything. क्या बोलोगे? He doesn't know anything. उसे सब कुछ आता है. He knows everything. He knows everything. उसे सब कुछ He knows आता है. everything. He knows everything. He knows everything. अपना सेल फोन रिपेयर करवाइए, वो खराब हो गया है. Get your cell phone repaired. He's हाँ. broken. Get your cell phone repaired. Repair. He's broken. Yes. देखो, खराब हो जाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाती है, we use a verb breakdown. क्या यूज करते हैं हम एक वर्ब? Breakdown. ये कॉजेटिव वर्ब है. Breakdown. ब्रेकडाउन का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का फंक्शन काम करना बंद कर देना. To stop functioning any electronic device, that's called breakdown. So get your cell phone repaired. It has Yes. broken down. Breakdown. Broken down. Yes. Once again, you have to speak. Get your cell phone repaired. Get your cell It has phone broken down. repaired. It has broken down. मुझे पता है आप कहाँ थे. I know. Where were you? Where were you or where you were? Where you were. Where Sorry. you were. Okay. करो जो आप कर सकते हो. Do what you can. Do what you can. बोलो जो आप बोल सकते हो. Speak what you can. मैं नहीं बोल सकता जो आप बोल रहे हैं. I can't speak what you are speaking. मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है. I have started speaking English. I have started speaking English. Persona ज्वाइन करने के बाद मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया. After joining Persona Institute. Okay. I have started speaking English after Speaking joining Persona. after joining Persona Institute. मैंने उससे बात करना बंद कर दिया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है. I have stopped talk to him because I have no time. I have stopped talking to him because I don't have time. Talking to him. आप दिन भर करते क्या रहते हो? What do you do? What do Whole you day. keep? देखो करते क्या रहते हो? What do you keep doing? What do you keep doing? Long day. Whole day. Whole day. ठीक है. What do you keep doing? Long day या whole day? मैं पढ़ाई करते रहता हूँ. I am studying. I am keep studying. I am नहीं. I keep studying. I keep studying. मैं यहाँ आते रहता हूँ. I keep coming मैं here. वहाँ जाते रहता हूँ. I keep going there. आपको वहाँ जाते रहना चाहिए. You should keep going there. आपको यहाँ आते रहना चाहिए. You should keep coming here. क्या आप यहाँ आते रहने के लिए तैयार हैं? Are you ready to keep coming here? क्या आप इंग्लिश सीखना शुरू करने के लिए तैयार हैं? Are you started to? No. क्या आप इंग्लिश सीखना शुरू करने के लिए तैयार हैं? Are you ready to Are you start ready to learning English? Are you ready to start speaking English? Are you ready to start learning English? एक बार फिर से पूरा स्टेटमेंट बोलिए. Are you ready to start learning English? क्या आप वहाँ जाना शुरू करने के लिए तैयार हैं? Are you ready to start going there? आपको वहाँ जाते रहना चाहिए. You should keep going there. आपको यहाँ आते रहना चाहिए. You should keep coming here. यहाँ आते रहो. Keep coming here. वहाँ जाते रहो. Keep going there. इंग्लिश सीखते रहो. Keep learning English. इंग्लिश बोलते रहो. Keep speaking English. कीप स्पीकिंग इंग्लिश. है ना? इंग्लिश पढ़ाते रहो. Keep teaching English. आपको इंग्लिश पढ़ाते रहनी चाहिए. You should keep teaching English. आपको सेंटेंसेस बनाते रहने चाहिए. You should keep making sentences. आपको सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है. You need to keep making sentences. ओके. आपको यहाँ आते रहने की जरूरत है. You need to keep coming here. मैं यहाँ आना चाहता हूँ. I want to come here. मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ. I want to speak English. मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ. I want to help you. आई वॉन्ट टू हेल्प यू. बोलने की कोशिश करो. Try to speak. ट्राई टू स्पीक. लिखने की कोशिश करो. Try to write. मैं लिख रहा हूँ. I'm writing. मैं बोल रहा हूँ. I'm speaking. क्या यह आपका पेन है? This is your pen. इज दिस योर पेन? क्या यह आपका पेन है? Is this your pen? आपके पास पेन है? Do you have pen? यू हैव पेन. आपके पास पेन नहीं है? You don't have pen. यू डोंट हैव पेन. मैं सुन रहा हूँ. I'm listening. मैं सुन रहा था. Was listening. मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया है.
I have started studying. I have started studying. मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया है. I have started going there. I have started going there. आपको वहाँ जाते रहना चाहिए. You should keep going there. जाते रहो. Keep going there. आते रहो. Keep coming here. इंग्लिश सीखते रहो. Keep learning English. आपको इंग्लिश सीखते रहना चाहिए. You should keep learning English. You should keep learning English. चलिए, that's great. You are trying well, Harsh Patel. You tried well. I appreciate it. That's great. देखिए, जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा. ये गेट है, इसके बाद में एडजेक्टिव लगता है कभी कभी. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये है. तो जब आप कहते हो गुस्सा करना, टू गेट प्लस एडजेक्टिव. टू गेट एंग्री, गुस्सा करना. टू गेट लेट, लेट होना. टू गेट हैप्पी, खुश होना. टू गेट सैड, दुखी होना. टू गेट हंग्री, भूखा होना. टू गेट कोल्ड, ठंडा होना. टू गेट हॉट, गर्म होना. मैंने कहा चाय गर्म हो रही है, टी इज गेटिंग हॉट. टी इज गेटिंग हॉट. चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कोल्ड. वह भूखा हो रहा है, ही इज गेटिंग हंग्री. वो उदास हो रहा है, इज गेटिंग सैड. इज गेटिंग हैप्पी, वो खुश हो रहा है. वो मैं लेट हो रहा, आई एम गेटिंग लेट. वो गुस्सा हो रहा है, इज गेटिंग एंग्री. तो ये जो गेट है ना, इसके बाद में कोई एडजेक्टिव आप लगाते हैं तो वो होने का मीनिंग देता है. एक यूज ये है इसका. ठीक है जी सर. इसके अलावा गेट जो है कॉजेटिव वर्ब में यूज होता है, जैसे गेट ऑन, गेट ऑफ, गेट डाउन. ठीक है ना, गेट बैक. तो ये भी गेट आपका यूज होता है. ये कॉजेटिव वर्ब में इसके यूजेस हैं, है ना. गेट ऑन कहीं पर चढ़ना, जैसे बोलते हैं ना, गेट ऑन द डांस फ्लोर, स्टेज पर ऊपर आ जाओ. टू क्लाइंब समवेयर, कहीं पर ऊपर जाना, दैट इज गेट ऑन. इसके बाद एक गेट ऑफ. गेट ऑफ मतलब होता है उतरना, नीचे जाना. गेट डाउन, नीचे उतरना, नीचे जाना. गेट बैक, वापस उसी जगह पर जाना जहां से आया था. मैंने कहा गेट बैक टू द वॉक, वापस काम में लग जाओ. सो ये गेट इस तरीके से कॉजेटिव वर्ब में फिर यूज होता है. तो ये दो यूजेस हैं. इसके अलावा इस तरीके से ये फ्रेजल वर्ब में यूज होता है. ये आपका एक अलग यूज हो गया. ऐसे ही मेक है. अब देखो, किसी को खुश करना, मेक हैप्पी. ठीक है, मेक के साथ में एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट. इधर देखना, मेक प्लस एडजेक्टिव. ठीक है, अब मैंने कहा किसी को खुश करना, मेक हैप्पी. आपने किसी से कहा कि आपने मुझे खुश कर दिया, यू मेड मी हैप्पी. ठीक है. मेक फूल, किसी को उल्लू बनाना. मेक मिस्टेक, गलती करना. टू मेक सैड, उदास करना, यू मेड मी सैड. तुमने मुझे उदास कर दिया, उदास बना दिया. ठीक है ना. तो इस तरीके से मेक के बाद में कुछ एडजेक्टिव्स आप लगाकर, मेक हंग्री, भूखा बनाना, भूखा करना किसी. मैंने कहा टेक दिस टैबलेट, ये टैबलेट ले लो, इट विल मेक यू हंग्री. इट विल मेक यू हंग्री. ये आपको क्या कर देगी, भूखा कर देगी, है ना. तो मेक के दूसरे अदर यूजेस ये है कि भाई मेक के बाद आप क्या करो, एडजेक्टिव लगाओ और नए नए यूजेस बनाओ. ठीक है मैम. और इसके अलावा अगर आपने कुछ नया यूज पढ़ा है तो बताओ कि सर यहाँ पर गेट और मेक मैंने पढ़ा था, ये कैसे यूज हुआ है. अगर आपने कहीं कोई सेंटेंस पढ़ा है. मैंने बस मुझे यही पूछना था कि मैंने देखा है सर हर किसी सेंटेंस में गेट, गेट, मेक मतलब पाना भी होता है उसका. मैं ये इसलिए. चलो कोई नहीं. ठीक है ना. तो आप जब भी कुछ पढ़ो ना, तो पहले ये समझना कि किस आधार पे आया होगा, इसका मीनिंग यहाँ क्या निकल रहा है. अब हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमने देखो गेट और मेक के ऑलमोस्ट जितने यूजेस है सारे पढ़ लिए. अब अगर कुछ नया है तो उसको लाओ, पूछो क्लास में, सर ये मैंने यहाँ पर पढ़ा था, ये कैसे यूज हुआ है ना. ठीक है. चलिए ठीक मैम, यू ट्राइड वेल.